Hello everyone, very good evening and welcome back to weekly webinar cum training sessions of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome to all attendees here. So thank you very much for joining us for today's sessions. I'm Sampada representing Rajlakshmi Solutions Private Limited, and today we are going to talk about business report in Tally Prime. So before moving ahead to the topic, let's introductions of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into software sales, services, solutions, implementations and development. So first we deal with Tally Prime, second SAP Business One, third Bitrix 24 and fourth is Skill India. So now speakers are available here. So presentations will be conducted by Ms. Simran and live demonstrations will be conducted by Mr. Aniket. On behalf of Diksha, Aniket will do the live demonstration. And Mr. Resource Person, Bhagwati Prasad Dhandaria. So Simran, are you here? Yes, ma'am. Good evening. Good evening. Yeah, welcome Simran. Yeah. Hello, Aniket. Aniket, are you here? Yes, ma'am. Good evening. Yeah, welcome Aniket. And Bhagwati sir? Yeah, I am available over here, Sampada. Thank you. Yes, sir. Thank you very much. Yes, and Simran, you can start your presentations. Okay. Yes, ma'am. Yes. And we will share the PPT. Yes. Just hold on. Yeah. Hello, good evening, everyone. Myself, Simran Jinwal, representing on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of the management and the entire team of the Rajlakshmi Solution, I would like to welcome all the participants present here. So let's moving ahead. Our today's topic is business reports in Tally Prime. This is our complete Rajlakshmi team. Next slide, ma'am. So let's start our today's topic. Business report. Business report is extremely crucial when it comes to financial planning. These reports are also called as financial statement. Gives us the overview of financial health of the organization. Tally Prime give you the numerous financial reports, but also give you the great flexibility to customize these reports based on your business requirement. These primary reports are all that Tally Prime generates are accounting reports, inventory reports, financial reports, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट कंट्रोल रिपोर्ट्स. बिजनेस रिपोर्ट्स में हमें कई सारे रिपोर्ट्स हमें प्रोवाइड होते हैं. बिजनेस रिपोर्ट इन द सेंस वो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग लाइक हमारे बिजनेस के रिलेटेड जो भी हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, हमारे स्टेटमेंट्स क्या है, हमारा कंप्लीट ओवरव्यू बिजनेस रिपोर्ट से हमें समझ में आता है. उसमें कई सारे रिपोर्ट्स टैली प्राइम में हमें प्रोवाइड हमें करता है, बट हमें कुछ प्राइमरी रिपोर्ट्स आज हम देखने वाले हैं लाइक अकाउंटिंग रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, financial reports, statutory reports, and management control reports. Moving to next slide. So first, let's see what is accounting report. Accounting report in Tally Prime help you to organize the present raw financial data and turn into the useful information. This includes balance sheets, profit and loss, receivables, payables, cash flow statement, and so on. Accounting reports हमें हमारी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्प करती है, जिससे हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड होती हैं, जिससे लाइक हमारा बैलेंस शीट, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, हमारा रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. लाइक हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट इन द सेंस हमारा पर्टिकुलर उस फाइनेंशियल ईयर में हमारा कितना कैश इनफ्लो हुआ है, कितना कंपनी से कैश हमारा आउटफ्लो हुआ है. तो ये कंप्लीट डिटेल्स हमें अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के थ्रू भी मिल जाती हैं. नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. Inventory reports. The transaction entered in Tally Prime are immediately posted in respective ledgers, books, and register. The inventory reports in Tally Prime are generated based on these transactions. This facilitates instant reporting, faster decision making. Track your inventory, stock summary, location, go down summary, movement analysis, stock aging analysis, stock query, physical stock register,
स्टॉक कॉस्ट एस्टिमेशन, इन्वेंट्री इन द सेंस हमारी इन्वेंट्री, हमारी कंपनी में कितने इन्वेंट्रीज, कितना इन्वेंट्री हमारा स्टॉक पेंडिंग है या फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, हमारा इन्वेंट्री और फिजिकल स्टॉक में मैच, मतलब हमारा फिजिकल स्टॉक और हमारा इन्वेंट्री मैच हो रहा है कि नहीं, ये कंप्लीट डिटेल्स हमें इन्वेंट्री रिपोर्ट से प्रोवाइड होती हैं। जैसे हमारा ट्रैक, हम अपने इन्वेंट्रीज को ट्रैक कर सकते हैं स्टॉक समरीज से, लोकेशंस, गोडाउन समरीज एंड मूवमेंट एनालिसिस, स्टॉक एजिंग एनालिसिस, स्टॉक क्वेरी एंड फिजिकल रजिस्टर्स एंड स्टॉक कॉस्ट एस्टिमेशन। तो इन्वेंट्रीज में हमारे मतलब हमारे कितना स्टॉक्स वगैरह पेंडिंग है, हमारा क्या हम नेक्स्ट स्टॉक हम कभी मंगा सकते हैं या कभी ऑर्डर कर सकते हैं, तो कंप्लीट डिटेल हमारे बिजनेस रिलेटेड हमें हमारे इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में प्रोवाइड हो जाती है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड मैम। Next is financial reports. Financial report in Tally Prime are an overview of your financial results, financial position and cash flow and of the business. In order to access business performance and the financial position, all these transactions have to be summarized and analyzed over a period of time. With this reports, you will have to in-depth view of your business in doing who is your customers, who is your best customer, the state of your cash flow, eligibility of your business, financing or a loan, and so on. Financial report nothing but the overview of your business and financial results. हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारा कंपनी का कैश फ्लो कितना है, हम आगे के लिए हमारे फ्यूचर में कौन से बड़े प्लान हमारे कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स को प्लान कर सकते हैं, हमारा कैश फ्लो एक पर्टिकुलर ईयर में कितना हो रहा है, हमारा कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, इनफ्लो कितना हो रहा है, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट से हम देख सकते हैं। हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी पोजीशंस को हम देख सकते हैं ना। और उसके अलावा हम हमारे जो बेस्ट कस्टमर्स हैं उनको भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा कौन सा बेस्ट कस्टमर है, हमारा स्टेट ऑफ कैश फ्लो कितना है, हमारा एलिजिबिलिटी कितना है, हमारे फाइनेंशियल पोजीशंस को लेके हमारा एलिजिबिलिटी कितना है, या फिर हम इन फ्यूचर किसी बड़े लोन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, हम उसके लिए एलिजिबल हैं क्या। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट से हमें कंप्लीट व्यू प्रोवाइड हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। Statutory reports. Statutory reports, business reporting consists of the or business. It includes service tax report, TDS reports. The features of statutory reports are related to countries specified, either goods and the services tax in India. Statutory reports में like GSTR 1, GSTR 2, 3Bs, ये सारी रिपोर्ट उसमें इंक्लूड होती हैं। उसके साथ साथ TDS है, TTS है और अलग जो टैक्सेस हम मेंटेन कर रहे हैं, कंप्लीट उसका ओवरव्यू हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट से ले सकते हैं। हमारा GST का जो भी रिपोर्ट्स हैं हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। Last but not the least, management control report. MIS reports are reports required by the management to assess the performance of the organization and allow the faster decision making. A management information system, often simply referred to as a MIS, it can be understood by looking at each of the words that make up the name. There is the management, the information and the system at the heart of it. Such system is one will be the provide you the important information to be management of the company. MIS report किसी भी बिजनेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है, लाइक जो भी बिजनेस अथॉरिटीज हैं या फिर जो भी बिजनेस कंसर्न पर्संस हैं उनके लिए MIS रिपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे MIS रिपोर्ट से हमें कंप्लीट ओवरव्यू मिल रहा है, उसके साथ साथ हमारे इंफॉर्मेशन जो है हमारे बिजनेस से रिलेटेड, हमारी परफॉर्मेंस के रिलेटेड, हम कंप्लीट शॉर्ट टर्म में उस पर्टिकुलर डिटेल्स को देख फास्टर कर सकते हैं। अभी कोई भी रिपोर्ट हमारे पास है तो हमें उसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, तो कंप्लीट MIS के थ्रू हम डिसीजन मेकिंग को फास्टर कर सकते हैं। हम कोई भी इन फ्यूचर के लिए कोई हमें अगर बड़ा प्रोजेक्ट लेना है, कुछ भी करना है, तो कंप्लीट MIS के थ्रू वो इजी वे में आप लोग फास्टर वे में कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स। तो इसको हम अपने बिजनेस अगर हम अपने बिजनेस रिपोर्ट्स को देखेंगे या फिर हम अपने डेली वर्किंग में बिजनेस रिपोर्ट को व्यू करने का प्रोसेस रखेंगे तो हम आगे अपने बिजनेस को काफी बेटर वे में
शायद से प्रोसेस कर पाएंगे। तो ये रिपोर्ट्स को आप यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आपको आपका कंपनी का ओवरव्यू, अपने डेप्थ, आपके जो भी डिटेल्स, आपके बेस्ट कस्टमर्स हैं, आपका कंपनी का ओवरव्यू है, ये सब सारे डिटेल्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। तो टैली ने काफी इजी वे में ये चीजें हमारे सामने प्रेजेंट की हैं, तो हमें आई थिंक इसे यूज करना चाहिए। तो दैट्स इट फॉर माय एंड। संपदा मैम। Yes, thank you, Simran. Yeah, Aniket, over to you for the live demonstration. Hello, Aniket. Hello, are you here? Yes, ma'am. Hello, good evening. Yeah, Good evening, everyone. My name is Aniket Chavan, presenting from Raj Lakshmi Solutions Private Limited. First of all, I will share my screen. Is my screen visible, ma'am? Yes, Aniket, go ahead. Yes. तो सबसे पहले टैली प्राइम में बिजनेस रिपोर्टिंग इन टैली प्राइम इसमें अकाउंटिंग रिपोर्ट में, जैसे सिमरन मैम ने बताया था, इसमें सबसे पहला जो रिपोर्ट आता है बैलेंस शीट का, जिससे टोटल ओवरऑल कंपनी का जितना भी ट्रांजेक्शन है, कितना कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, सब कुछ ओवरऑल टैली बैलेंस शीट में दिख जाता, शो होता है रिपोर्ट में। इसमें सबसे पहले बैलेंस शीट का जो रिपोर्ट है वो इस तरीके से टैली के गेटवे पे बैलेंस शीट का ऑप्शन दिया है यहाँ पे। तो इसमें आप बैलेंस शीट में आपका टोटल कैपिटल अकाउंट कितना है, आपकी लायबिलिटीज कितनी है, आपके पास एसेट कितना अवेलेबल है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका कितना अभी चल रहा है, कितना हो रहा है, ओपनिंग आपने कौन से लेजर में कितना डाला है, वो सब ओवरऑल आपको बैलेंस शीट में शो करेगा। और अगर आपको यहाँ पे डिटेल में बैलेंस शीट की रिपोर्ट चाहिए, यहाँ पे F12 में ऑप्शन दिया है। अगर आपको बैलेंस शीट परसेंटेज वाइज चाहिए, परसेंटेज में भी आपको शो करता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। एक्सक्लूड अकाउंट विद जीरो ओपनिंग बैलेंस, जिसका ओपनिंग बैलेंस जीरो है वो एक्सक्लूड, वो लेजर यहाँ पे शो नहीं करेगा, इसके लिए ऑप्शन दिया है। इसको डिटेल में कर दिया तो आपका जो बैलेंस शीट है टोटल डिटेल में आपको शो करेगा। वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल में जैसे अभी ये बैलेंस शीट परसेंटेज का ऑप्शन मैंने यस किया है, परसेंटेज में दिख रहा है। F12 में अभी मैं इसको वर्टिकल आपको करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से वो बैलेंस शीट शो करता है आपको। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो पॉइंट आता है अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में आपका टोटल कंपनी का ओवरऑल सेल कितना है और उसका परचेज कितना है, और उसकी वैल्यू के हिसाब से आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है और आपका लॉस कितना हो रहा है, वो टोटल यहाँ पे दिखा देता है। जैसे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे जीरो है, वो जीरो है, ब्लैंक ही दिखा है। परचेस अकाउंट इतना है और सेल अकाउंट इतना है। इसमें आपका क्लोजिंग स्टॉक इतना आपके पास बचा है और आपके टोटल आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, वो सब यहाँ पे शो करता है। इसको भी आप कॉन्फ़िगर करके डिटेल में देख सकते हैं, परसेंटेज में भी देख सकते हैं। इसको भी डिटेल में आप शो कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक जीरो है। परचेस में परचेस अकाउंट जो सेल किया है, सेल में कौन सा आइटम आपने सेल किए है, कितने वैल्यू से किए, सब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आपको शो करता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आपको आपकी करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट, सेल और परचेज अकाउंट शो करता है। इसमें भी आप कॉन्फ़िगर करके आपके ओपनिंग बैलेंस आउटवर्ड इनवर्ड वो शो कर सकते हैं। ट्रांजिशन के साथ आप रिपोर्ट देख सकते हैं, ताकि आपको आपकी कंपनी का पूरा ओवरऑल डिटेल में रिपोर्ट मिल जाए। इसमें इस तरीके का आपको रिपोर्ट दिखता है टैली में। करंट लायबिलिटीज में आपके ड्यूटी एंड टैक्सेस में इतना आपके पास टैक्स अभी ये अवेलेबल है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है इन्वेंट्री रिपोर्ट का। इन्वेंट्री रिपोर्ट में सबसे पहले जो इन्वेंट्री का इनवर्ड आउटवर्ड जो आपके पास स्टॉक कितना अवेलेबल है, कितना इन हुआ है, कितना आउट हुआ है, उसका आपकी रिपोर्ट दिखती है स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में
आइटम वाइज अगर आपको देखना है तो आइटम वाइज भी शो करता है। अगर आप ग्रुप वाइज मेंटेन करते हो इन्वेंट्री, तो यहाँ पे ग्रुप वाइज का भी ऑप्शन दिया है। उसके बाद पर्टिकुलर स्टॉक आइटम, आपके पास कितना इन हुआ है, कितना आपने परचेज किया है, कितना सेल किया है, और आपके पास कितना क्लोजिंग अभी बचा है, और ओपनिंग आपने डाला होगा तो ओपनिंग का भी आप यहाँ पे F12 से कॉन्फ़िगर करके ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं, ताकि आपको ओवरऑल स्टॉक की भी रिपोर्ट मिल जाती है इसमें। इस तरीके की आपको पूरी स्टॉक की आपके पास कितना अवेलेबल है, कौन से गोडाउन में अवेलेबल है, वो भी आपको यहाँ पे शो करता है स्टॉक समरी में। ठीक है। इन्वेंटरी रिपोर्ट में सेकंड पॉइंट आता है स्टॉक क्यूरी। स्टॉक क्यूरी आपको देखना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ पे स्टॉक क्यूरी का ऑप्शन है। स्टॉक क्यूरी में आपको पर्टिकुलर आइटम वाइज, पर्टिकुलर जो आइटम है कब आपको सेल, आपने परचेज कब किया है, कितना क्वांटिटी किया है, उसको सेल कब किया है, और वो कौन से गोडाउन में कितना स्टॉक आपका अवेलेबल है, टोटल उसकी स्टॉक की डिटेल के साथ आपको स्टॉक क्यूरी में शो होता है। ठीक है। कौन सी पार्टी को किया है, कौन सी डेट को किया है, इसमें भी आप कॉन्फ़िगर करके ओवरऑल जो रिपोर्ट है डिटेल में देख सकते हैं। जैसे आपको डिस्क्रिप्शन देखना है, डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन आप यहाँ पे इनेबल करके देख सकते हैं। अलाइज भी आप इनेबल करके रिमार्क भी शो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है इन्वेंट्री में मूवमेंट एनालिसिस। मूवमेंट एनालिसिस में आप अगर लेजर वाइज देखते हैं तो आप लेजर वाइज भी आपको शो करेगा, मतलब पर्टिकुलर पार्टी को आपने कौन सा आइटम कब सेल किया है, कब परचेस किया है, आप ओवरऑल लेजर वाइज भी देख सकते हैं। उसके बाद स्टॉक आइटम वाइज भी देख सकते हैं। ग्रुप और कैटेगरी मेंटेन अगर आप करते हो तो आप ग्रुप और कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। आइटम वाइज मैंने आप सेलेक्ट किया तो पर्टिकुलर स्टॉक आइटम कब उसका मूवमेंट जो कब उसका परचेज किया है, सेल किया है, टोटल उसकी जो बेसिक वैल्यू, क्वांटिटी वगैरह है, वो सब आपको यहाँ पे शो दिखता है। इसे भी आप कॉन्फ़िगर करके ओवरऑल डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद आता है एजिंग एनालिसिस। एजिंग एनालिसिस में आपका पर्टिकुलर जो पीरियड है 0 to 45, 45 to 90 डेज, 90 to 80 डेज में कितना आपका इस पीरियड में सेल परचेस हुआ है, या फिर कितना इस पीरियड में आपका सेल परचेस, कितना आपके पास स्टॉक अवेलेबल है, वो सब आपको एज वाइज दिखता है। एज वाइज रिपोर्ट शो होती है आपका एजिंग एनालिसिस में। ठीक है। उसके बाद आता है इन्वेंट्री बुक। इन्वेंट्री बुक में आप पर्टिकुलर स्टॉक, यहाँ पे स्टॉक आइटम का ऑप्शन दिया है। स्टॉक आइटम में पर्टिकुलर आइटम वाइज आप देख सकते हैं उस आइटम का आपके पास कितना इनवर्ड, आउटवर्ड और उसका क्लोजिंग, और उसको जैसे आप इंटर करते हैं तो आपको उसका ओवरऑल ट्रांजिशन के साथ रिपोर्ट मिल जाता है। जैसे आइटम 2 को सेलेक्ट किया, इसका इनवर्ड नहीं है, इनवर्ड ब्लैंक दिखा रहा है, ओनली आउटवर्ड है। इसको जैसे एंटर करते हैं तो वो एंट्री भी शो कर देता है। उसके बाद गोडाउन वाइज भी आपको इन्वेंट्री रिपोर्ट में ऑप्शन दिया है। जैसे आप मल्टीपल गोडाउन मेंटेन करते हो तो कौन से गोडाउन में आपका कितना स्टॉक अवेलेबल है वो अगर आपको देखना है तो गोडाउन वाइज भी आपको ऑप्शन दिया है टैली ने। जैसे डेमो गोडाउन है, डेमो गोडाउन में कितना मेरा स्टॉक अभी अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे शो करता है। स्टॉक ग्रुप और कैटेगरी मेंटेन अगर होगी तो आप ग्रुप कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट आता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में आपका जो टैक्सेशन का पार्ट होता है, जैसे जीएसटी हो गया, टीडीएस, टीसीएस हो गया, वो सब स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में आता है। उसके लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, इसमें जीएसटी रिपोर्ट, टीडीएस रिपोर्ट, टीसीएस रिपोर्ट। जीएसटी रिपोर्ट में जीएसटीआर 1, 2, 3B,
ई बिल और ई इनवॉइसिंग अगर आप पे एप्लीकेबल है तो उसका भी रिपोर्ट आप जीएसटी रिपोर्ट में देख सकते हैं। एनुअल कंपटीशन रेट सेटअप, ये जीएसटी का सब सेटअप है। जो जीएसटी के ओवरऑल रिपोर्ट है, जीएसटीआर 1, 2 और 3 भी है, टैली में प्रोवाइड है। 1 में आपको जैसे आप पर्टिकुलर पीरियड का जितना भी आपका सेल होगा तो वो सब जीएसटीआर 1 में आपको शो करता है। इस पे आपने जैसे B2B ट्रांजेक्शन, B2C ट्रांजेक्शन, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सब आपको यहाँ पे पर्टिकुलर पीरियड में शो होती है। अगर आपके कुछ रिटर्न के लिए इनवॉइस मिसमैच में तो वो भी आपको यहाँ पे शो करते हैं। अगर कुछ नहीं है मिसमैच में, सब प्रॉपर है, तो वो सब आपको यहाँ पे टोटल वाउचर शो करेंगे। आप डायरेक्टली टैली में से ही एक्सपोर्ट ये रिपोर्ट निकाल के आप अपलोड कर सकते हैं, रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। जीएसटीआर 2 में आपका टोटल से परचेज शो करता है। इसमें भी आपको B2B, B2C का बाइफरकेशन मिल जाता है रिपोर्ट में। जीबी में आपको सेल और परचेज दोनों दिख जाता है, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों का आपको रिपोर्ट मिल जाता है जीएसटी का। उसके बाद आता है यूए बिल। यूए बिल में आप अगर यूए बिल भी जनरेट करते हैं बाय डिफॉल्ट टैली में से, तो उसका भी आपको टैली में रिपोर्ट मिल जाता है, कितने आपके यूए बिल जनरेटेड है, कितने कैंसिल किए आपने। उसके बाद आता है टीडीएस रिपोर्ट। टीडीएस रिपोर्ट में फॉर्म 26Q, 27Q रिटर्न का भी ऑप्शन दिया है, रिटर्न ट्रांजेक्शन बुक। आप डायरेक्टली यहाँ से फॉर्म 26 एक्सपोर्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। उसके बाद टीसीएस का भी सेम ऑप्शन दिया है, 27EQ। टीसीएस आउटस्टैंडिंग, किसी का अगर टीसीएस आउटस्टैंडिंग होगा तो वो भी आपको यहाँ पे शो करता है। ठीक है, ये हो गया ओवरऑल आपका स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो आपको टैली में प्रोवाइड होता है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आपको कैश फ्लो और फंड फ्लो का ऑप्शन दिया है टैली में। कैश फ्लो, फंड फ्लो में आपका इनफ्लो टोटल जो कैश होता है, टोटल आपके पास इनफ्लो और आउटफ्लो कितना होता है, टोटल आपके पास अवेलेबल कितना है, ताकि आपको ये रिपोर्ट देख के आपको पता चले कि आगे आपको जो कैश है उसका जो इन्वेस्टमेंट कैसा करना है, या फिर कोई लोन्स वगैरह जो कंपनी को मिलता है उसके लिए ये रिपोर्ट देख के एक बेनिफिशियल है। फंड फ्लो का भी इनफ्लो और आउटफ्लो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे शो करता है। यस मैम। So that's it from my side. Thank you. Okay, Aniket, it's done. Yes, ma'am. Okay, yeah. Thank you, Simran and Aniket. It was a nice presentations. So now time is over recap. So Bhagwati sir, are you here? Yeah, I'm available. Yeah. Yes, sir. Over to you. Yeah, thank you, Samra. And thank you, team. I'm Bhagwati. Hi, good evening, everyone. I'm Bhagwati here from Rajya Lakshmi Solutions Private Limited. And yeah, so every week we are taking new topics according to your demand. So today the business reports and MIS in the Tally Prime. So किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा इनपुट किसी सॉफ्टवेयर में, डेटा इनपुट तो सभी सॉफ्टवेयर में हो जाते हैं, वी कैन डू इन द एक्सेल एंड इन वेरियस टाइप ऑफ द सिंपल सॉफ्टवेयर, बट मोर एवरी टाइम वी हैव मोर इम्पोर्टेंस ऑफ द रिपोर्ट कि आज कोई भी हम डेटा जो इनपुट कर रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी डेटाबेस में, तो वी वांट टू गेट द रिजल्ट। अल्टीमेटली वी आर वर्किंग फॉर द आउटकम, वी आर नॉट वर्किंग फॉर द इनपुट। तो इनपुट इज मैंडेटरी फॉर द आउटपुट। तो जो हम डेटा फिल कर रहे हैं, जो डेटा हम पुट कर रहे हैं हम टैली ईआरपी के टैली प्राइम के अंदर में, उसके बेस पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ द रिपोर्ट चाहिए होती है
जो डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन मेकिंग के लिए हमें लगती है। तो ये सभी रिपोर्ट्स को हम कैसे टैली प्राइम के अंदर में एक्सप्लोर कर पाएंगे फिंगर टिप्स पे, in the fraction of the second, fraction of the minutes, how can we get all the reports in the tally prime? So ये सभी चीजों का इंपॉर्टेंस ये है, फॉर एग्जांपल अगर हमें टाइम से अगर जीएसटी की रिपोर्ट टाइम से नहीं मिल रही है तो अल्टीमेटली वी विल फुल द मिस्टेक बाय मिस्टेक हम कुछ भी जीएसटी अगर कंप्लाइंस अगर हम फिलअप कर रहे हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 3B कर रहे हैं या 2A कर रहे हैं या 3 GSTR 1 फाइल कर रहे हैं, तो ये सभी फाइलिंग में अगर हमने गलत डेटा डाल दिया तो हमें आगे आने वाले समय में उसकी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है और उससे हमारा बिजनेस भी डिस्टर्ब हो सकता है। हमारे कस्टमर्स, हमारे वेंडर्स, उसके इनपुट अगर हमने नहीं लिया या कस्टमर्स को इनपुट अगर नहीं मिला तो डेफिनेटली वी विल लूज द रिलेशन एंड बिजनेस बोथ। तो इसके लिए हमें रिपोर्ट से, एग्जाम्पल मैंने जीएसटी का लिया, सेम वे में टीडीएस की बात करूं कि हमने टीडीएस को डिडक्शन कर लिया किसी भी कस्टमर्स का, किसी भी वेंडर्स का, लेकिन टाइम पे हमने अगर रिटर्न नहीं फाइल किया, टाइम पे हमने टीडीएस भरा नहीं, तो हमें पेनाल्टी इंटरेस्ट भी आ जाएगा। उसके बाद में अगर हमने रिटर्न नहीं फाइल किया टाइम पर तो डेफिनेटली सामने हमारा जो वेंडर्स है जिसका टीडीएस हमने काटा है उसको उसका सेटअप नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली देयर इज अ ट्रस्ट बीच करेगा और कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन पर आएगा एंड वी लूज द बिजनेस इन फ्यूचर ऑल्सो, वी लूज द गुडविल ऑल्सो। तो इन टर्म्स ऑफ द दिस compliance other things, we are getting very good and vast and detailed report in the tally prime. अब मैं एग्जांपल लेता हूँ अकाउंटिंग पार्ट पर। आज मेरे आउटस्टैंडिंग है, मुझे कैश फ्लो जानना है, मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है, मेरा अगर कैपिटल स्टक कर रहा है तो किधर किस तरफ से स्टक कर रहा है, किधर मेरा कैपिटल का फ्लो नहीं हो रहा है, मेरी कैपिटल की यूजेस कैसे हो रही है, मेरा डेब्टर्स का एवरेज पेमेंट रेशियो क्या है, क्रेडिटर्स को मैं कितने टाइम में पेमेंट दे रहा हूँ, ये सभी एनालिटिक्स अगर हम प्रॉपर कर पा रहे हैं, हमारी पेमेंट अगर टाइम पे आ रही है और हमने अगर कैपिटल हमने जो भी डाली है उसके बेस पे हम देख सकते हैं हमारा फंड फ्लो अगर ज़्यादा है, हमारा कैश फ्लो ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं हमें कहाँ पर डिसीजन लेने चाहिए, कहाँ पर हमें फंड फ्लो को मैनेज करना, कहाँ कैश फ्लो को मैनेज करना, कहाँ हमें कैपिटल हमने अगर ज़्यादा डाल के रखी है कंपनी में तो हमने उसका इन्वेस्टमेंट हम दूसरी तरफ करके उसका एडवांटेज ले सकते हैं। अगर हमने कम डाली है तो डेफिनेटली वी हैव टू प्लान टू रन ए बिजनेस स्मूथली टू फॉर द इन्वेस्ट द कैपिटल ऑल्सो। तो यहाँ डेब्टर्स, क्रेडिटर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सिंगल आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल मैनेजमेंट, हाउ वी कैन मैनेज द कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, जिसको हम पूरी तरीके से देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स में। तो इससे हमारा बिजनेस हम और ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं और हमारे पास अगर फंड फ्लो ज़्यादा है तो डेफिनेटली वी कैन टॉक विद आवर सप्लायर एंड वी कैन गिव द एडवांस पेमेंट, वी कैन गेट द एडवांटेज ऑफ द डिस्काउंट एंड एक्सेट्रा, and we can buy the good numbers of the bulk quantity and get the big discount and we can make a much more profit. तो ये सभी चीज़ों को भी हम यहाँ से देख पाएंगे जहाँ पर हम अकाउंटिंग रिपोर्ट की बात करते हैं। सेम वे इन्वेंट्री की मैं बात करूँ कि हमने काफ़ी कोई प्रोडक्ट परचेज तो कर लिया लेकिन दैट प्रोडक्ट मूवमेंट इज़ वेरी स्लो। अगर हमने 10% डिस्काउंट में कोई एक प्रोडक्ट परचेज किया, गुड क्वांटिटी परचेज कर ली, लेकिन अगर एक साल तक वो हमारा मूवमेंट नहीं हुआ तो वी लूज द मनी बिकॉज इंटरेस्ट एंड वेयर हाउसिंग ऑल द investment are there, so ultimately we are not getting the proper profit and margin, but so ये जो प्लानिंग है एजिंग ऑफ द स्टॉक कि हाउ कैन वी एज द स्टॉक कि कितने टाइम में हमारा मूवमेंट हो रहा है। अगर हमारा स्टॉक का मूवमेंट 30 डेज में है, डिपेंड ऑन द बिजनेस सिनेरियो, कौन सा बिजनेस आप कर रहे हैं उसके बेस पे आपको ये चीज़ें देखनी होती है। अगर आप डे टू डे वर्किंग का कंजम्पशन का गुड्स, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल और मिल्क की बात करें तो एवरी डे मूवमेंट चाहिए। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ 3 महीने में मूवमेंट होता है, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं स्टॉक का मूवमेंट एवरी 15 डेज में एवरेज हो जाना चाहिए। तो ये आपको एवरेज देखना पड़ेगा कि आपकी इंडस्ट्री का एवरेज, स्टैंडर्ड एवरेज क्या होना चाहिए स्टॉक का, इन्वेंट्री का, मूवमेंट का। तो ये सभी मूवमेंट के हिसाब से क्या हम अपने स्टॉक हमारा मूवमेंट उस बेस पे है क्या, अगर नहीं है तो अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं हम अपनी कैपिटल को डंप कर रहे हैं और हम कहीं राइट वे में हम बिजनेस को डायरेक्शन नहीं, हमारा बिजनेस राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। वी आर डूइंग द ओवर स्टॉकिंग एंड वी आर कहीं ना कहीं हमारा कैपिटल डंप हो रहा है। So ultimately, we are losing the profit margin. We are losing the stock warehousing cost, and our cost is also increasing that.
तो जहां पर इन्वेंट्री की मैं ये बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यू आर इन द फार्मास्यूटिकल्स, अगर आप फार्मास्यूटिकल्स में है तो आपके पास एक्सपायरी है, एक्सपायरी को आपको मेंटेन करना है। यू हैव टू नो दैट मुझे एक्सपायरी होने के पहले ही मेरा माल को रिटर्न करना है या उसके लिए जो एक्शन प्लान करने हैं। तो अगर ये रिपोर्ट आपको अपने टाइम से मिलती रहती है तो डेफिनेटली यू कैन प्लान अकॉर्डिंग दैट एंड यू कैन सेल दैट प्रोडक्ट इन द राइट टाइम and or you can return that product before the expiry of the, as per the policy of the your vendor and supplier. So in terms of the various type of the things are available in the Tally Prime, जो हर एक बिजनेस इंडस्ट्रीज के हिसाब से हर एक की नीड को फुलफिल करती है, और जहाँ पर आप अपने हिसाब से रिपोर्ट का मूवमेंट देख सकते हैं। आपको एक एनालिसिस करना है कि मेरा कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, कौन से प्राइसेस में मूवमेंट हो रहा है, कौन से प्राइस में ज्यादा स्टॉक जा रहा है। तो यू कैन फाइनलाइज द प्राइस कि ये प्राइस रखने से मेरा माल ज्यादा बिकता है, तो डेफिनेटली यू कैन सेट दैट प्राइस स्टैंडर्ड पैरामीटर्स कि ये प्राइस में मुझे ये प्रोडक्ट बेचना चाहिए, जिससे मेरा quantity numbers of the sales per day increases हो जाएगा। Same way you can also analyze the supplier, how you are buying the from the supplier। आपका supplier एक ही प्रोडक्ट को 3 बार देता है, 3 अलग अलग प्राइस में देता है, you can also identify that। तो you can talk with your supplier कि भाई आपका हर एक इनवॉइस में डिफरेंट प्राइसिंग आते हैं, जबकि we set that this price। So you can also take the credit note and debit note, you can take the debit note to pass the debit note and you can get the benefits of that। तो छोटी से लेके बड़ी चीजें, MIS इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, जिसके ऊपर हम लोग 2 दिन भी बात करें, 10 दिन भी बात करें तो कम ही होगा। लेकिन मैंने एक थोड़ा सा ग्लिम्स आपको दिया है कि हाउ टैली प्राइम इज सपोर्टिंग अस इन टर्म्स ऑफ द मेकिंग अ राइट डिसीजन इन द राइट प्लेस, राइट टाइम ऑन द सिंगल फिंगर स्टेप। सो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसके बेनिफिट आप ले पाएंगे। और इसके अलावा भी कोई ऐसी रिपोर्ट्स, बहुत सी ऐसी कस्टमर्स हैं हमारे पास जिन्होंने कुछ अपने हिसाब से अपने डिजाइन रिपोर्ट करवाए हैं, तो वी आर डूइंग द कस्टमाइजेशन आल्सो इन द टैली प्राइम। सो जहां पर आपको जो रिपोर्ट टैली प्राइम में है, मोस्टली है, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपोर्ट चाहिए तो टैली प्राइम ने बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट का भी ऑप्शन दिया है हम लोगों को, जिससे हम आपको टैली प्राइम आपके हिसाब से, आपके तरीके से कस्टमाइज करके दे सकते हैं, जहां पर आप अपनी मनचाही रिपोर्ट या आपके डिफरेंट फॉर्मेट्स या डिफरेंट प्रोसेस एंड फ्लो, इफ यू आर इन द मैन्युफैक्चरिंग तो देयर इज वेरियस टाइप ऑफ द फ्लो एंड प्रोसेसेस, सो वो सभी चीजों को सेट कर पाएंगे। तो ये सभी चीजों का एडवांटेज लेने के लिए आप देख पा रहे हैं चैट में, हमारे आपके चैट में यहाँ पर हमने हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल डाल के रखा है। यू कैन कॉन्टैक्ट विथ आवर सपोर्ट टीम, यू कैन कॉन्टैक्ट विथ योर अकाउंट मैनेजर, दे आर वर्किंग विथ यू from Rajya Lakshmi Solutions। You can contact with me, my number is also populated in the chat box, and you can also subscribe our YouTube channel, जहाँ पर आप YouTube चैनल पर ये जितने भी हमने आज तक जितने भी सेशंस किए हैं वो सभी सेशंस आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलेंगे, जहाँ पर आप टैली प्राइम को बहुत ही अच्छे ढंग से यूज कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से उसकी ट्रेनिंग ले पाएंगे। क्योंकि आज की डेट में कस्टमर हमें बोल रहा है कि वी हैव नो नीड टू गो एनी ट्रेनिंग सेंटर, we have no need to any trainer for the Tally Prime, क्योंकि हम आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखा, हमें जिस टॉपिक पर कोई चीज ट्रेनिंग लेनी होती है हम आपका वीडियो देख लेते हैं। तो कस्टमर आर गेटिंग द बेनिफिट्स एंड टेकिंग द एडवांटेज ऑफ आवर YouTube चैनल। सो आप भी सब्सक्राइब कीजिए और उसका एडवांटेज लीजिए। और इसके बाद में भी अगर आपको कोई सपोर्ट हमसे लगता है तो डेफिनेटली हमने आपको सपोर्ट नंबर चैट बॉक्स में डाला है, जिसका एडवांटेज आप ले पाओगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड it's over to you, Samada. Thank you. Yeah, thank you, sir, for your time. And this session will be uploaded in our YouTube channels. So be connected to our YouTube and social media channels, and be connected to our key account managers for any support and any requirement. So now we are wind up the session. So see you soon in the next webinar. Thank you. Thank you. Have a good day. Thank you. Bye-bye.